Hello everyone, my name is Yogesh and in this video we will understand some MySQL commands. Okay, so here is the list of commands. So first we will understand the select command, how to select multiple columns and single column. The second, update command. Third, delete command. Fourth, drop table, and how to rename a table. So these commands we will understand in this video. So let's start. First open MySQL. First enter your password of MySQL. Open your database. Okay, my database is student, so I'm opening this one now. Open any table. If you have any table, then open that. Otherwise, create a new table. Okay, or I'm having already a table, so I'm opening that table. Select all from. Okay, my table name is Tom, so I'm writing here Tom. Okay, see, here is the query. Select star means all. I already explained. तो here star meaning is to select all the columns. यानी अगर आप star लिखते हो that means you are selecting all the columns from table. So this is the query, select all from Tom. Okay, so let's press enter. See, तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं, मैंने एंट्री की हुई है. अगर आपको उस टेबल में सारे कॉलम देखने हैं तो जस्ट यू हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Tom. Okay, Tom is the table name and here this means all column. अगर आपको कोई particular एक column देखना है, in my table तो there are 3 columns. So how many columns in your table? If you want to display all the columns then star. If you want to display a particular column, suppose मुझे यहाँ पे सारे column नहीं देखने, मुझे 2 column देखना है या कोई particular एक column देखना है, तो that also you can display by the select command. How to write select. Okay, at the place of star write the column name. आपको कौन सा column देखना है? Suppose I want to display only the name column, तो select name from the table name Tom. Now press enter. Now see, only one column is coming. So this is the way to select multiple column and to select a single column. Okay, here is not necessary you can display a single column, you can display the more than one column also. Suppose select name comma what is the column there, I think city column is there, तो city. तो आप एक से ज़्यादा कॉलम या जितने कॉलम आपको देखने हैं you can write by separating a comma. Select name comma city from Tom. Okay, enter. See, यहाँ पे 2 कॉलम डिस्प्ले हो गए. तो ये इट्स अप टू यू, यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स एंड यू वांट टू डिस्प्ले पर्टिकुलर कॉलम. बाय दिस कमांड you can display a single column or a 2 column, see how much you want, or you can display all the column which are in table. So this is the first command, how to display a select single column or multiple columns, or you can display all the columns. Now the second one command, second is update command. Okay, suppose if you done any entry and you want to change that entry. Okay, first let's display the complete table. Okay, here is the table. तो मुझे कोई entry change करनी है. If I done wrong then I want to change the entry, I want to update that. So how to do this? By the update command. So, okay, let's see the first one. Okay, first one वाला हमारी entry है roll number 10, name and the city. Okay, तो मुझे यहाँ पे change करना है city को. यहाँ पे मुझे city को change करना है. I want to replace. So how to replace? By the update command. Okay, what's the command? Update the table name. Okay, update the table name. Update Tom and the set. Okay, set is the fixed word. Afterwards set के बाद में आपको जो जो कॉलम अपडेट करने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. सपोज मुझे केवल सिटी चेंज करना है, देन सिटी इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या सिटी रखना है. सपोज यहाँ पे जो लोसल है इसकी जगह मुझे कुछ और चेंज करना है, देन यू कैन चेंज दैट. सीकर एंड नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज अपडेट Tom set city, and set means कि क्या चेंज करना है. आई वांट टू चेंज द सिटी सीकर, बट ऑफ विच रिकॉर्ड मीन्स कौन से रिकॉर्ड की आपको चेंज करनी है. अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि किस एंट्री की रिकॉर्ड की एंट्री मुझे अपडेट करनी है, देन इट विल अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स. ओके, लेटर वी विल अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट वेयर, ओके, हियर
here is the column SR number or by the name also you can do. Okay, अभी करके देखते हैं. First according to the SR number equal to 10. Okay, see यहाँ पे सिंपल क्वेरी है, अपडेट करना है टॉम को. टॉम इज द टेबल नेम. सेट क्या चेंज करना है आपको, सिटी इक्वल टू सीकर. एंड वेयर इज फॉर कंडीशन, वेयर यानी किसका चेंज करना है हमें, SR नंबर 10 यानी इस रिकॉर्ड का. नाउ प्रेस द एंटर. Now see, one message is coming, query okay, one row affected, one change. Now display the table again. Now see, before update command here is a local. Now the city is seeker. तो ये query से आप change कर सकते हो. You can change one entry or you can change more than one entry together also by the one query. Okay, how to do this again. जैसे suppose मुझे यहाँ पे name और city दोनों को एक साथ change करना है. The first one record, ठीक है. जरूरी नहीं फर्स्ट आप कोई सा भी कर सकते हो. सपोज दिस द नेम सोनू एंड दिस, दोनों को मुझे चेंज करना है. मुझे नाम भी चेंज करना है सोनू का और यहाँ पे सिटी भी चेंज करना है. इन द सेम वे अपडेट टॉम सेट द फर्स्ट नेम आपको चेंज करना है. तो व्हाट द नेम यू वांट टू गिव. सपोज सोनू की जगह मुझे कुछ और करना है यहाँ पे. ओके, गणेश. देन और क्या चेंज करना है मुझे साथ में, कोमा. मुझे सिटी भी चेंज करना है. सिटी इक्वल टू एनी सिटी व्हाट यू वांट टू गिव, यू कैन गिव दैट. तो ओके, आई वांट टू गिव जयपुर. ओके, नाउ द वेयर. ओके, हियर वेयर इज इंपॉर्टेंट. अगर आप वेयर डिफाइन नहीं करोगे देन इट विल अपडेट ऑल द एंट्रीज. ओके, तो वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. वेयर SR नंबर इक्वल टू 10. ओके, नॉट 10, हियर इज सोनू का आपको चेक करना है. हियर इज 12. तो राइट हियर 12 एंड नाउ प्रेस एंटर. सी वन रो चेंजेस, वन चेंजेस हैज बीन डन. नाउ डिस्प्ले द टेबल. नाउ सी, पहले यहाँ पे 12 का सोनू था और सिटी दूसरा था, अजमेर था. देन इट इज चेंज, नाम चेंज हो गया गणेश और सिटी जयपुर. यानी आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो. सी हियर इज द क्वेरी, अपडेट टॉम सेट, और जितने आपके कॉलम की वैल्यूज चेंज करनी है यू कैन डिफाइन बाय सेपरेटिंग कोमा. यानी नेम इक्वल टू गणेश कोमा सिटी इक्वल टू जयपुर, और आपको जो भी चेंजेस करना है. एंड ऑफ विच एंट्री यू वांट टू चेंज, जिसका SR नंबर आपको 12 है. ओके, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका SR नंबर सेम है यानी 12 SR नंबर से दो एग्जिस्ट करती है एंट्री, तो ये दोनों को चेंज कर देगा. तो रिमेंबर दिस थिंग, वेयर जब आप अपडेट करो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चेक करना है कि मैंने वेयर लगाया है या नहीं. ओके, तो वेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ पे वेयर नहीं लगाओगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री चेंज कर देगा. तो दिस इज द वे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे सभी रिकॉर्ड्स में एक साथ चेंजेस करनी है. सपोज कोई सैलरी वाला कॉलम है या कोई बोनस वाला कॉलम है, मुझे उसमें सभी के अंदर 10,000 बोनस प्लस ऐड करना है या सैलरी में से डिडक्ट करना है, या सभी की एंट्रीज को अगर चेंज करना है देन हाउ टू डू. लेट्स चेक. तो यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम तो नहीं है, हम SR नंबर को चेंज करके देखते हैं. सपोज मुझे सारे SR नंबर जो हैं 10 से हैं, 10 11 12, मुझे इनको 100 से करना है. 100 102 इस तरह से करना है. तो कैसे करते हैं, सिंपल, अपडेट टॉम सेट ओके SR नंबर इक्वल टू SR नंबर प्लस जो भी आपको करना है. सपोज आई एम डूइंग 100 और मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया, मैंने वेयर नहीं लगाया. अगर आप वेयर नहीं लगाओगे देन इट विल अपडेट ऑल द एंट्रीज. इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, अपडेट करना है टॉम को, सेट यानी चेंज करना है, SR नंबर इक्वल टू SR नंबर प्लस 10, यानी हर SR नंबर के अंदर ये 10 10 10 सॉरी 100 100 100 ऐड करता जाए. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे सैलरी कॉलम नहीं है बट आप सैलरी कॉलम में भी कर सकते हो. आप 100,000 ऐड कर सकते हो, 1000 माइनस कर सकते हो. इन द सेम वे, द सेम क्वेरी. प्रेस द एंटर. नाउ सी व्हाट इज कमिंग हियर. यहाँ पे आपकी 11 एंट्रीज है तो यहाँ पे आ रहा है 11 रो अफेक्टेड 11 चेंजेस. नाउ सी द टेबल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉम, डिस्प्ले करते हैं टेबल को. नाउ सी ऑल द SR नंबर चेंज, सब में 100 ऐड हो गया. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ अपडेट कमांड. अगर यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम होता तो आप सेम वे में आप यहाँ पे सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 कर सकते हो, माइनस 1000 कर सकते हो. ठीक है, कोई भी आप
यहाँ पे ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हो बाय दिस अपडेट कमांड। अगर आपको सभी रिकॉर्ड्स में अपडेट करने हैं तो आपको इस तरह की अपडेट कमांड लिखनी है, इसमें वेयर नहीं लगाना है। और अगर पर्टिकुलर एक में करना है देन राइट द अपडेट कमांड विद वेयर क्लाउड्स। कम टू द नेक्स्ट कमांड। द नेक्स्ट कमांड इज डिलीट कमांड। ओके, डिलीट कमांड किस लिए है? मुझे टेबल में से कोई एंट्री डिलीट करनी है। ओके, इनको करने से पहले हम इनको वापस से चेंज कर देते हैं। ये मैंने 110 कर दिया, इसको हम वापस से अगर वही करना है तो सेम क्वेरी आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, कम टू द लास्ट। मैंने यहाँ पे लिखा था अपडेट टॉम इक्वल टू सेट इक्वल टू, और ये मैंने यहाँ पे 100 प्लस किया था। नाउ मुझे वापस से वैसे ही करना, देन आई विल माइनस 100। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। मुझे वापस उसी फॉर्म में चाहिए, देन मैंने माइनस 100 कर दिया, प्रेस एंटर। नाउ डिस्प्ले अगेन द टेबल। सी, सभी में से माइनस 100 हो गया, तो जिस फॉर्म में पहले थी उसी फॉर्म में ऐसा नंबर आ गया। ओके, नाउ द डिलीट कमांड। डिलीट कमांड, सपोज आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है तो यू कैन डिलीट दैट एंट्री by the delete command. Okay, then how to delete? Simply write delete from Tom. Okay, here is the one command, delete from Tom. Okay, ये delete करने के लिए, but अगर आपने लिखा है delete from Tom तो ये सारी entries delete कर देगा। So be careful whenever you are using the delete command. Be careful। अगर आपको सारी entries delete करनी है, पूरी टेबल को एम्प्टी करना है, तब आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टॉम। तो सारी एंट्रीज को रफ कर देगा, उसमें चाहे 11 हो या 11,000 एंट्री हो या 1100 हो, ये सारी एंट्रीज रफ कर देगा। तो बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर डिलीटिंग। बट आई डोंट वांट टू रफ ऑल द एंट्रीज, आई वांट टू रफ अ पर्टिकुलर एंट्री। सपोज मुझे लास्ट वाली एंट्री रफ करनी है जिसमें पूरी एंट्री नहीं है, तो डिलीट फ्रॉम टॉम एंड स्पेसिफाई द वेयर क्लाउड्स, वेयर SR number equal to 23. Now press enter. See the query delete from Tom where SR number equal to 23, क्योंकि 23 लास्ट वाला SR नंबर है तो मुझे वो डिलीट करना है। See, one query okay, one row affected. Now display the table. See the 23 gone। यहाँ पे 23 एग्जिस्ट करती थी बट मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो इन द सेम वे यू कैन डिलीट एनी एंट्री। बट वन मोर थिंग टू रिमेंबर, अगर यहाँ पे कोई SR नंबर सेम हुआ या कोई जिसके बेस पे आप डिलीट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हमें यहाँ पे SR नंबर के बेस पे डिलीट करें, आप नेम के बेस पे भी डिलीट कर सकते हैं। बट अगर कोई एंट्री सेम हुई, जैसे मैं यहाँ पे नेम के बेस पे डिलीट कर रहा हूँ, अगर नेम सेम हुए तो इट विल डिलीट बोथ द एंट्रीज टुगेदर। ओके, लेट्स चेक इट। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो दिनेश कुमार है और दिनेश सैनी है। तो यहाँ पे ओके इनको नेम एक और ऐड कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। सपोज यहाँ पे ईमा एक और है, हम एक और ऐड कर देते हैं, देन इट इज इजी फॉर यू। वंस एक और एंट्री कर देते हैं। ओके, 23 comma the name we will take the ema same name and the city ओके, हमने एक और एंट्री कर दी जिसमें उनके नेम सेम है। सी, यहाँ पे ईमा नेम है बट द सिटी इज डिफरेंट और एसआर नंबर इज डिफरेंट, एंड हियर आल्सो वन मोर नेम ईमा बिलोंग्स टू कोटा। ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग। डिलीट फ्रॉम टॉम एंड नाउ वेयर। ओके, एज आई सेड जस्ट नाउ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी कॉलम के बेस पर डिलीट कर सकते हो, एसआर नंबर, नेम, सिटी, बाय द एनी कॉलम। ओके, नाउ नेम इक्वल टू सपोज ईमा मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है डिलीट फ्रॉम टॉम वेयर नेम इक्वल टू ईमा। जैसे मैंने अभी कहा, अगर सेम एंट्री से होगी, अगर मैंने नेम इक्वल टू ईमा लिखा है, अगर ईमा नाम से 2 नेम हो या 4 हो या 10 हो, अगर जितने नेम हो गए इट विल डिलीट टू ऑल दैट एंट्रीज। ओके, सो इन द सेम वे नाउ प्रेस एंटर। सी, यहाँ पे मैसेज आ गया क्वेरी ओके टू रो अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे 2 नाम है ईमा तो इसने उन दोनों को डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पे 4 नेम होते सेम या 10 होते तो इट विल डिलीट ऑल द एंट्रीज जिनके नेम ईमा होंगे। ओके, नाउ डिस्प्ले द टेबल। सी, यहाँ पे नेम ईमा है ही नहीं, डिलीट हो गया। तो दिस इज द वे हाउ टू डिलीट the entries from the table. Okay, and this query
if you want to play, so you can play in your computer. I don't want to play this query right now because अगर मैंने सारी entries rough कर दी तो then video will not complete. I have to enter all the entries again, so that's why I'm not playing this. If you want to delete in your computer, then you can use this query. अगर आपने एक बार delete कर दी, then all the records will go on. Okay, so let's move on next command. Next command is drop table command. Okay, the drop table command is used for to delete the complete table. अगर आपको पूरी table you want to delete your table completely from database, means अगर आपको पूरी table requirement नहीं है या table is not necessary, not useful for you, तो and you can delete your table from database permanently. यानी एक बार आप उस table को erase कर सकते हो completely. अगर आपके लिए required नहीं है, then you can delete the table from database. Okay, how to do this? Now to this query I don't want to play here, but I have a one more table. Select all from which is the table. Okay, ये छोटी सी table है, simple. I made one entry only. Suppose here are 10 entry, 100 entry, that is not useful for me, and that's this table is not useful for me. Remo. So I want to delete this table from database. And how to delete? By the drop table command. Drop table and the table name. Simple command है. अगर आपको table को delete करना है, just write drop table and the table name. And table name here is Remo. Simply. Now press enter. See, query okay. And zero row affected means it will delete all the entries. So now I want to display the table. Select all from Remo. मैंने जिस table को अभी delete किया है. Now I want to display. See, table does not exist. यानी student database का नाम है यहाँ पे. Dot Remo table थी. Does not exist. तो यानी वो table database में से delete हो गई. This is the way how to delete your table from database. But be careful in this command also. अगर आपको पूरी table completely delete करनी है, then only use this query. For practical, you can make a simple small table like I made. On that you can do your practical. Come to the next command. Next is rename table. Okay, rename table simply you can understand. अगर आपको table का नाम change करना है, then you can do this by this command. Okay, first display that table. Which one table? The table is Tom. Okay, here this table, the table name is here Tom. Okay, मुझे इस table का नाम change करना है. I want to change this name. Then how to change? Simple command. Rename table. Okay, rename table. So first will come the old name. यानी कौन सी टेबल का आपको नाम चेंज करना है? Rename table Tom to. Okay, rename table and old name of table Tom and the new name of table. जो भी आपको name देना है, then you can give. Suppose I want to give uh, student or std. Okay, std I want to give this table name. So this is the old name of the table and to the new name. Simple. Semicolon and now press enter. Now see, query is okay. Now I want to display my table. Select all from Tom. मैंने Tom से display करना चाहता हूँ. Now press enter. See, the table does not exist. ये मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया है. अगर मुझे डिस्प्ले करना है, then don't write Tom. Just now I change the table name std. Press enter. See, the same table is here. So by this command you can change the table name. Rename table Tom to std. Okay, so here are these 5 commands. You can select single or multiple columns. You can update any entry or the complete table. You can delete any particular entry or more than one entry. Drop table command and the rename table command. These are the 5 entries. Okay, so in this video this much. I hope you understood. Thank you very much.